A very good morning to all of you. Myself, Dr. Tarun, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College. This is my lecture for my BCom second semester students, and topic today I am dealing with is very important topic, that is Weber's theory of plant location. And this is very important topic from examination point of view. Okay, first of all, before going to Weber's theory of plant location, earlier we have done with the topic what is location of the plant. That means हम अपने प्लांट को या अपने व्यवसाय को कहाँ पे स्थापित करें. That means selection of an appropriate site for locating the plant. This is important decision making function of an entrepreneur. ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है entrepreneur का कि वह कौन सी साइट पे या किस जगह पे अपने प्लांट या बिजनेस को लोकेट करने के बारे में सोच रहा है. Okay, so plant location is selecting an appropriate site where you are going to locate the plant. किस जगह आप अपने व्यवसाय को लगाना चाहते हैं या स्थापित करना चाहते हैं. That's an important question. Okay, when you have made this decision कि where I am locating the plant, so several factors that comes into your mind, that if you are locating your plant at this appropriate site, what are the factors you think that should be there? That's why you have chosen that place. Okay, because appropriate location always increases the productivity management. It always decreases the production and distribution cost, and that always helps in augmenting the productivity and profitability of the enterprise. That's very important. So most advantageous location is one where the cost of supplying, bringing the raw material, fabricating the raw material to the point of manufacture, and from the point of manufacture distributing the product to the market is minimum. कहने का मतलब कि जहाँ पे हमको प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फैब्रिकेट करने की कॉस्ट, और जब वो वहाँ पे सेमी फिनिश टू फिनिश प्रोडक्ट में बनकर तैयार हो गया है, वहाँ से मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट जो होती है, जहाँ पे कम से कम आएगी, वहीं हम अपने प्लांट को या बिजनेस को लोकेट करेंगे, ताकि हमको वहां से आसानी से बाकी भी और सर्विसेज उपलब्ध हो जाए, जैसे नियरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट फैसिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, कंपीटिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सो ऑल दीज आर वेरियस फैक्टर्स that should be kept in mind while you are locating an industrial plant at appropriate site. So all this we have done in our lecture, in our class, that what is plant location, what is plant layout, what are the advantages, what are the different factors, everything we have done. Today we have to deal with the most important topic, that what is the Weber's theory of plant location. Alfred Weber was a German economist, and he was the first one who studied the various complex methods of location and who gave this theory, that's a theory of plant location. Okay, why? Because he said that he has studied the various complex methods of, and he gave the augmentation to the theory of plant location. So what the Alfred Weber, he said, according to him, he said only two causes are responsible for location of the plant. उन्होंने कहा कि खाली दो तरीके की कॉस्ट होती है जो जरूरी होती है यदि आप कहीं पे अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं, अपने प्लांट या बिजनेस को लोकेट करते हैं. नंबर वन, प्राइमरी फैक्टर, एंड नंबर टू, दैट्स अ सेकेंडरी फैक्टर. ओके, प्राइमरी फैक्टर इज व्हाट? प्राइमरी फैक्टर इज दैट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्ट्री और प्लांट. और सेकेंडरी फैक्टर कौन होता है? सेकेंडरी फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which are responsible for the concentration or dispersal of industry. Okay, so now
we will study here that what is the Weber's theory of plant rotation. Okay, coming with the primary factor, as we have said that Weber's has pointed out the whole theory into two factors, that is, one is primary factor and another one is the secondary factor. Under primary factor, only two costs he has taken, that only two costs is responsible for locating the plant. Number one, that is the cost of transportation, and number two, that is the cost of labor. जहाँ पे ये transportation cost या labor cost कम से कम आएंगी, वहीं हम अपने व्यवसाय को स्थापित करेंगे. At that appropriate site, at that particular place, I am going to locate my plant. Okay, so this was said by the Weber, Alfred Weber. Okay, so what he said that cost of transportation में उन्होंने क्या बताया, क्या चीज होती है? Cost of transportation दो तरीके की cost उसमें include होती है. एक तो वो cost जब आप raw material को point of supply से लेके पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर तक आते हैं. ठीक है भाई, किसी सप्लायर से ही तो रॉ मटेरियल हमारे आएगा मैन्युफैक्चरर के पास, जहां से हम उस रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश टू फिनिश प्रोडक्ट में टर्न करेंगे. सो दैट कॉस्ट व्हिच दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हिच इज यू आर अंडरटेकिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट, फ्रॉम ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड व्हेन दैट प्रोडक्ट इज टर्न्ड इनटू semi-finished to finished product. So after that raw material has turned into finished product. So cost of transporting that raw material from the point of manufacture to the point of consumption, to the point of distribution, to the market. कहने का मतलब कि एक तो वो cost जो आप सप्लायर से लेके आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर तक रॉ मटेरियल को के रूप में. ठीक है भाई, हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है ना पॉइंट ऑफ सप्लाई से लेके पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर तक, एक तो वो कॉस्ट, और जब आप उस रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट में टर्न कर देंगे, सो अब भाई आपको आपका प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट में आउटपुट के फॉर्म में रेडी है, तो नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट टू द मार्केट. नाउ यू हैव टू सर्च फॉर योर कस्टमर हु इज रियली गोइंग टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट. So that cost which you are taking from the point of manufacture to the point of distributing or to the point of consumption or to the market. Okay, so what is this cost? Cost of transportation includes all that cost from the point of all that transport cost from the point of supply to the point of manufacture, and after that raw material is ready into finished product. So taking that raw material from the point of manufacture to the point of distribution cost, okay, to the market. So यही पूरी cost होती है हमारी transportation cost. और उन्होंने बोला जहाँ पे ये cost minimum होगी, कम से कम होगी, वहीं पे हम अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे. Now और ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसके आधार पे डिपेंड होती है? एक तो वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड और दूसरा आपका डिस्टेंस टू बी कवर्ड. कितना वेट आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ओके, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और कितना डिस्टेंस आपको कवर करना है. तो वेबर ने वेट को एक्सप्रेस किया टन्स में. ओके, ही एक्सप्रेस द वेट इनटू टन्स एंड डिस्टेंस को उन्होंने माइल्स में एक्सप्रेस किया. ओके, सो ही सेड दैट ट्रांसपोर्टेशन या लोकेशन विल बी देयर वेयर द टन माइल्स कॉस्ट विल बी मिनिमम, वेयर द टन स्टैंड्स फॉर वेट एंड माइल स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. तो जहां पे ये टन और माइल्स की कॉस्ट कम से कम आएगी, वहीं पे हम अपनी इंडस्ट्री को, अपने प्लांट को लोकेट करेंगे. अब देखिए, okay, so now the question is that whether he is going to, where he is going to locate the plant. कहाँ पे वो near the source of raw material choose करे या near the market करे. ठीक है, क्योंकि देखिए हमने जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको बता रही थी, when I was telling you the cost of transportation, हमने आपको बताया कि दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है. एक तो तब जब आप
रॉ मटेरियल को पॉइंट ऑफ सप्लाई से लेके मैन्युफैक्चर तक आ रहे हैं, एक तो वो कॉस्ट, और दूसरी जब वो बन के फिनिश प्रोडक्ट में तैयार हो गई है तो अब जब आप उसको मार्केट में कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज रहे हैं, सो दैट कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। एक तो पॉइंट ऑफ सप्लाई से मैन्युफैक्चर तक और दूसरी पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ सप्लाई तक। तो पहले कॉस्ट में क्या आएगा, नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अगर हमारा लोकेशन ऑफ द प्लांट हो, या फिर दूसरा हमारा मैन्युफैक्चर से लेके मार्केट तक जा रहा है कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए प्रोडक्ट, तो हमारी इंडस्ट्री या नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो या नियर द मार्केट हो या इन दोनों के बीच में है। What is the ideal location of the plant? Whether it should be located near the source of raw material or whether it should be located near the market or in between the two, जहाँ पे एक ideal place हो, कहाँ पे हमारी इंडस्ट्री लोकेट हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन वेबर के दिमाग में आया ना। वेबर अब आगे दिमाग लगाते हुए चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, द मटेरियल दैट आई एम यूजिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो किस तरीके का है। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है जो हम यूज करके अपने फिनिश प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, जो हम पॉइंट ऑफ सप्लाई से ले आए हैं, वो किस तरीके का मटेरियल है। नेचर ऑफ रॉ मटेरियल भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका यूबीक्यूटस रॉ मटेरियल और दूसरा आपका आता है लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल। यूबीक्यूटस रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, दैट रॉ मटेरियल व्हिच इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सॉइल है, वाटर है, जो हमको आसानी से कहीं पे भी उपलब्ध है। तो अगर हमारी इंडस्ट्री इस तरीके के रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, देन लोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये कहीं पे भी उपलब्ध है ये रॉ मटेरियल। तो हमको ये नहीं सोचना है कि कहाँ पे मेरा प्लांट लोकेट हो। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ यूबीक्यूटस मटेरियल anywhere or over the country. Why? Because that is free gift of nature. और दूसरे तरीके का आपका आता है that's a localized raw material. Localized raw material वो होते हैं जो कहीं एक स्पेसिफिक प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जैसे आपका आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ठीक है, वुड हो गया। ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक कहीं स्पेसिफिक, that's not a free gift of nature, that's a found at some specific place. ठीक है, तो that is a localized raw material. अब localized raw material भी दो तरीके का होता है, pure raw material और gross raw material. Pure raw material कौन सा होता है, that's a non-weight losing material. That means non-weight losing material कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इट डज नॉट लूज इट्स वेट। जैसे का मतलब होता है कि जैसा रॉ मटेरियल में वेट था और जब ये आउटपुट बन के तैयार हुआ तो इसका बिल्कुल भी वेट में कोई भी लॉस नहीं होता है, या मैनुअली मिनिमम 1 से 2% किसी तरह का कोई लॉस हो गया। दैट्स अ प्योर रॉ मटेरियल। ये लोकलाइज्ड मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है ग्रॉस। तो यदि आपका रॉ मटेरियल प्योर रॉ मटेरियल है, that's a non-weight losing material. That means when it is going in the process of manufacture, it does not lose its weight. Example, जैसे आपका कॉटन हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, जैसे एज अ रॉ मटेरियल होते हैं वैसे ही एट द टाइम ऑफ फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। और दूसरा आपका आता है that's a gross raw material. Gross raw material is a weight losing material. ठीक है, that means जब हम इस प्रोसेस का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो it is when we are losing, when you are producing this good, when you are processing this manufacture, it is losing 98 to 99% of its weight. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लेंगे when you are producing, when you are processing sugar cane. Okay, so in the form of sugar cane गन्ने के रूप में होता है, और जब आप इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो शुगर के रूप में आपको उपलब्ध होता है। That means it has lost
98 to 99% of its weight. इस तरीके के मटेरियल को हम कहते हैं वेट लूजिंग मटेरियल. जैसे शुगर केन, when you are obtaining sugar from processing sugar cane, that is this type of material is losing 98 to 99% of its weight. तो अगर आपकी इंडस्ट्री इस तरीके के ग्रॉस रॉ मटेरियल पे बेस्ड है जो वेट लूजिंग नेचर है जिसका, तो हम इंडस्ट्री को उसी रॉ मटेरियल के सोर्स के नियर स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं सेव होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों के वेट में डिफरेंस है. जब हम उसको रॉ मटेरियल में ले आए और जब हम उसको कन्वर्ट करके उसको वेट लूज किए, तो वो उसने पूरा वेट अपना लूज कर दिया. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू लोकेट अवर प्लांट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री प्योर मटेरियल पे बेस्ड है, तो क्या मतलब है, if your industry is made on pure material, that means it does not lose it. तो कहीं पे भी आप अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करिए, लोकेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब वेट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, चाहे वो इनपुट के फॉर्म हो, रॉ मटेरियल का, या जब वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है, when there is no change in its weight, so anywhere you are locating a plant does not arise any question. Location is not going to attack significantly. लेकिन अगर आपका मटेरियल पूरी तरह से ग्रॉस रॉ मटेरियल पे बेस है जो वेट लूज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो एंटरप्रेन्योर को ये देखना होगा कि हम अपनी इंडस्ट्री को नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ही लगाएं, ताकि उससे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो सेव होगा. ओके, उसके बाद उन्होंने दिया मटेरियल इंडेक्स. मटेरियल इंडेक्स मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल divided by the weight of the finished product. Localized material अभी हमने क्या बताया था कि नेचर ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका है वो दो तरीके का होता है. एक तो यूबिक्यूटस, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में जो रॉ मटेरियल आपको कहीं पे भी उपलब्ध है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी जाइए. दूसरा होता है localized material that are found at some specific places. That means it's not available all over the country. That's not a free gift of nature. That's found at some specific places. तो मटेरियल इंडेक्स का फॉर्मूला है कि वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू मटेरियल इंडेक्स. अब इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, यदि आपका मटेरियल इंडेक्स मोर देन 1 है, तब तो आप अपना इंडस्ट्री नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल स्थापित करेंगे, वहां आप इंडस्ट्री को लगाएंगे. यदि आपका मटेरियल इंडेक्स इज कमिंग, मटेरियल इंडेक्स का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी देख, व्हाट इज दैट, दैट्स अ वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. दैट मींस अगर वो मटेरियल इंडेक्स दैट इज कमिंग मोर देन 1, so you are going to locate your industry near the source of raw material. Okay, but if material index is coming less than 1, तो कहां पे आप अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे, नियर द मार्केट. क्यों हमने इतना फॉर्मूला क्यों निकाला है, सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई हमारा जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों को इंक्लूड करता है. एक तो वो कॉस्ट जब आप पॉइंट ऑफ सप्लाई से लेके रॉ मटेरियल को पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर तक आते हैं, और दूसरा जब वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है, तो आप उसको कंजम्पशन के लिए पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाते हैं. तो बोथ द कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. तो एक तो हमारा आ रहा है कि नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो, और दूसरी कॉस्ट हमारी बता रही है कि इंडस्ट्री हमारा नियर द मार्केट हो. तो वेबर ने इस दुविधा को हटाने के लिए उन्होंने ये चूज किया कि दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, उनके भी दिमाग में था कि कहां हम अपनी इंडस्ट्री को लगाएं. either near the source of raw material, because both the things are important, both are the cost of transportation. So he has to locate the industry where he is getting near the source of raw material, or where which is located near the market. कहाँ पे? What is the ideal place? तो उसी को जानने के लिए उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड किया, कि इसके आधार पर हम रॉ मटेरियल को देखते हैं. यदि आपका नेचर ऑफ रॉ मटेरियल भी दो तरीके का होता है, यूबिक्यूटस, लोकलाइज्ड,
Ubiquitous materials that's available free gift of nature and localized that are found at specific places. तो अगर आपके रॉ मटेरियल का जो नेचर है वो यूबिक्यूटस है, वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पाया जाएगा, तो आप अपनी इंडस्ट्री को कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं, एनीवेयर. Location is not a big problem for you, but if your raw material is totally dependent on the localized material, then the problem is significant. Definitely, you have to locate your industry at the place where you are getting that localized material. ठीक है? So इन सारे फॉर्मूले का हमारा कंक्लूजन क्या था कि that's a material index. अगर material index का जो फॉर्मूला था, that's a weight of the localized material divided by the weight of the finished product. And if that material index is more than 1, so you are going to locate your industry near the source of raw material. If that material index is less than 1, you are going to locate your industry near the market. And if that material index is equal to 1, that is unity, that means you are going to locate the industry in between the market and material place. Okay, this was the conclusion of only the cost of transportation. दूसरा फैक्टर जो हमने बताया दैट वाज द कॉस्ट ऑफ लेबर. एक तो अभी हम चर्चा भी खाली किसकी कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें हमने ये सारी बातें आपको बताई. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर. लेबर भी एक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो मान लीजिए आपकी मिनिमम है, लेकिन आपने इंडस्ट्री मान लीजिए वहां लोकेट कर दी जहां लेबर का वेज रेट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई डिमांड कर रहा है लेबर, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टे एट दैट प्लेस. तो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट करें. तो इसके लिए उन्होंने बताया कि लेबर भी दो तरीके से उनके एफिशिएंसी और वेज रेट में डिफरेंस होता है. एक तो वो हर एक जगह पे कितनी एफिशिएंसी लेबर की है और उसको किस तरह का वेज रेट मिल रहा है, और दूसरी चीज उसकी एफिशिएंसी किससे होती है कि जहां वो काम कर रहा है, वेयर ही इज वर्किंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स he is getting at that place to do the work. इन दोनों चीजों पे अलग अलग लेबर की एफिशिएंसी डिपेंड होती है. ओके, एक तो कितने एफिशिएंट हैं हम और हमें उस एफिशिएंसी के हिसाब से कितना वेज रेट मिल रहा है, और दूसरी चीज what is the standardized tools and equipments I am getting from that particular factory or by that manager to improve my efficiency. तो कॉस्ट ऑफ लेबर भी दो तरीके के, दो बातों पे डिपेंड होता है. एक तो लेबर कॉस्ट और दूसरा आपका आता है लोकेशनल वेट. लेबर कॉस्ट क्या होता है? लेबर कॉस्ट इज वन दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट वेट ऑफ आउटपुट, दैट्स अ लेबर कॉस्ट. एंड लोकेशनल वेट मींस द टोटल वेट दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द होल प्रोडक्शन प्रोसेस. तो लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? दैट मींस कॉस्ट ऑफ labor cost divided by weight of the product, so that gives you the labor cost. तो अगर labor cost आपकी हाई है तो आप कहाँ पे मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे, आप वहीं मूव करेंगे जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम मिल रही है. ठीक है, लेकिन लेबर कोफिशिएंट, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है लेबर कोफिशिएंट. वो हम कैसे निकालेंगे? दैट्स अ लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लोकेशनल वेट. So if the labor coefficient is high, definitely you are going to move at the place where you are getting the cheap labor. And if the labor coefficient is less, then you are going to move near the source of raw material. So these were the two important primary factors, that's the cost of transportation and cost of labor, which is required to affect the location of the plant. This was, we were talking about the primary factor. Now we will come to the secondary factor. That is very quick. Within 5 minutes I will summarize this. Secondary factor दो तरीके के होते हैं. Number 1 agglomerative और number 2 deglomerative. What is this agglomerative and deglomerative factor? Agglomerate already जब हम आपको बता रहे थे वेबर की थ्योरी में, तो प्राइमरी फैक्टर कौन से होते हैं? That factor that affects the regional distribution of the country. And secondary factor is one which is responsible for the concentration or dispersal of industry. तो इसी आधार पे सेकेंडरी फैक्टर के अंदर में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं. नंबर 1 दैट्स एग्लोमरेटिव and number 2 that's a deglomerative. What's an agglomerative factor?
agglomerative factor is one which is responsible for concentration of industry at one place. कहने का मतलब वो फैक्टर जो हमें बार बार ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को इसी पर्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेट करें. ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर concentrating the industry at one place in that place only. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हमको इजिली अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल. तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं एग्लोमरेटिव फैक्टर जो हमको बार बार इंड्यूस करते हैं, इन्वोक करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को इसी पर्टिकुलर जगह पर स्थापित करें. दिस इज ओनली द एप्रोप्रिएट साइट फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री. सो these factors are those which are responsible for the concentration. Okay, जहां पे जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उसी पर्टिकुलर जगह पर अपनी इंडस्ट्री को लगाएं. और दूसरे जस्ट उसके ऑपोजिट होते हैं, दैट्स अ डिग्लोमरेटिव फैक्टर. डिग्लोमरेटिव फैक्टर्स आर दोज which are responsible for dispersal of industry. They are the real dispeller. Okay, जो हमको ये प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, हम इस जगह पे अपनी इंडस्ट्री को नहीं लगाएंगे. एग्लोमरेटिव हमें रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि हम कंसंट्रेट करें, हम वहीं लगाएं. लेकिन डिग्लोमरेटिव जो हमें ये प्रोड्यूस करते हैं, ये इन्वोक करते हैं कि नो, दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट प्लेस टू लोकेट आवर प्लांट. वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे इंक्रीज इन लोकल टैक्सेस है, राइज इन रेंट है, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग है, जहाँ पे आपको हाई वेज रेट है. ठीक है, इस तरह के हाई कॉस्ट ऑफ लैंड है. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बार बार इन्वोक करते हैं फॉर डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री. They are the external diseconomies. They are the real dispellers जो हमको इंडस्ट्री को डिस्पर्स करने को कहते हैं. जैसे राइज इन रेंट, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, देन आपका हो गया प्रॉब्लम इन हाउसिंग. सो दीज आर द इंक्रीज इन लोकल टैक्सेस. सो ऑल दीज आर द सेकेंडरी फैक्टर्स which are responsible for the concentration and dispersal of industry. With this, I am going to conclude my lecture. Tomorrow we will do with the criticism of Weber's theory of plant location and introduction to Florence theory of plant location. Now with this we are going to conclude our lecture. Thank you so much.